This is your GK book, GK Redefined, Class 2. Now today we will do Chapter 4, Golden Words. Now what is mean by golden words? Golden means shiny, सुनहरा, and words means अक्षर. आप सबको पता है ना अक्षर किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स. गोल्डन वर्ड्स, शब्द, सुनहरे शब्द. और यू कैन से the words that shows your manners and your etiquettes. Okay, चलो अब हम आगे देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि golden words किन्हें कहते हैं. To become a good person. If you want to be a good person, good habits are very important. Like if you want a good person, then develop good habits in you. आपको अपने अंदर good habits, अच्छी आदतें आनी चाहिए, आपके अंदर अच्छी आदतें होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो. One should use some golden words very frequently, which would help us to become a polite and humble person. Those who uses these words, these golden words in their daily routine, it helps them to become a polite person. Polite means sabrशील. And what is mean by humble? Humble means विनम्र. जो विनम्र होते हैं, जो प्राउडी नहीं होते, जो बिल्कुल शांत होते हैं, शांति से सारा काम करते हैं. लेट्स लर्न सम ऑफ दोज गोल्डन वर्ड्स. अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे गोल्डन वर्ड्स सीखेंगे बाई फिलिंग अप द क्रॉस वर्ड. दिस इज द क्रॉस वर्ड. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन दिस, वी हैव टू फिल द गोल्डन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू दीज statements and mentioning the golden words in the blank provided, and we have to fill the same golden words here also. Okay, now come to the first point. As you know, in this picture the boy is asking for something from the girl, right? Like when we ask for something from someone, we should say what we should say. In this picture the boy want to say something, want to ask something for this girl, right? वो इस लड़की से क्या कर रहा है, young girl से कुछ पूछ रहा है, right? तो when we ask something to someone, what we have to say? We have to say please. What we have to say? We have to say please. P-L-E-A-S-E, please. This is the first one. So we have to fill this word here also. P-L-E-A-S-E, please. Right. Now come to point 2. Dash, is this your book? Now in this picture, this young boy wants to talk to this girl, right? He want to ask something. तो ये लड़का इस लड़की से कुछ पूछना चाह रहा है. क्या पूछना चाह रहा है? Is this your book? ये बुक तुम्हारी है, राइट? वो इससे कुछ पूछ रहा है ना. ही इज़ आस्किंग समथिंग टू दिस गर्ल. सो इफ़ वी वॉन्ट टू आस्क समथिंग, इफ़ वी वॉन्ट टू इंटरप्ट समवन, तो व्हाट वी हैव टू से? वी हैव टू से एक्सक्यूज़ मी. अगर हम किसी से कुछ पूछते हैं, हमें किसी से कुछ पूछना होता है, तो हमें क्या बोलते हैं? हम उसको एक्सक्यूज़ मी, राइट? तो यहाँ क्या आएगा? एक्सक्यूज़ मी. E-X-C-U-S-E, excuse. M-E, me, excuse me. And we have to fill the same word in this crossword also. E-X-C-U-S-E, M-E-E, excuse me. Right. Now come to the third point. Dash for coming to the party. Now what they all are doing, they are celebrating the birthday. I think इस girl का birthday है, right? And he is her friend. ये इसका क्या है? Friend है. तो now what she says? she invite this boy. इसने क्या किया? इस boy को invite किया अपनी birthday पे, और वो उसकी birthday में आ गया है. तो girl उसको क्या कर रही है? Thank बोल रही है. What she said? She said थैंक यू. जब कोई हमारे यहाँ आता है, हम किसी को इनवाइट करते हैं, व्हाट वी हैव टू से? वी हैव टू से थैंक यू. और इफ़ समबडी गिव्स अस समथिंग, सो देन ऑल्सो वी आर सेइंग द सेम वर्ड, थैंक यू. ओके, देन राइट थैंक यू ओवर देयर. T-H-A-N-K, thank. Y-O-U, thank you. And we have to fill the same word over here also. T-H-A-N-K-Y-O-U, thank you. Right? Now come to the fourth one point.
I am dash for hurting you. Now what is going on? उसने अपना क्या कर रखा था? अपने हाथ जोड़ रखे हैं. It means he done something wrong with this girl. He done something wrong ना, इसने इसके साथ कुछ गलत किया था ऐसा लग रहा है. तो now what he is doing? He is folding their hands. वो अपने हाथ जोड़ रहा है. It means say he wants to say sorry. जब हम कुछ गलत करते हैं, इफ़ वी डू समथिंग रॉन्ग विथ समवन, व्हाट वी हैव टू से, वी हैव टू रियलाइज़ आवर मिस्टेक. हमें अपनी मिस्टेक रियलाइज़ करनी चाहिए ना. इफ़ वी डू समथिंग रॉन्ग एंड वी आर नेवर एवर सपोज टू आर्गुइंग विथ एनीबॉडी. हमें किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए. जब हमने अगर कोई गलती की है तो हमें उसको मानना चाहिए. तो व्हाट ही वॉन्ट टू से, ही वॉन्ट टू से सॉरी फॉर दिस गर्ल. व्हाट वी हैव टू राइट, वी हैव टू राइट सॉरी ओवर देयर. I am sorry for hurting you. I am sorry. मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैंने तुम्हें दुखी किया. Right? Now come to fifth one point. In this picture, the girl says, "Thank you for your help." It means this young boy helped this girl. इस young boy ने इसकी मदद की थी. तो if someone help us, जब हमारी कोई मदद करता है तो what we have to say? If someone say thank you for us, अगर कोई हमें थैंक यू बोलता है तो what we have to say in return? हमें क्या बोलना चाहिए उसको रिटर्न में? जल्दी बताओ क्या बोलना चाहिए. You are most welcome. Right, you are most welcome. Right. Oh, we have to write welcome over here also. Right. बट हमने एक चीज़ तो मिस कर दी. वेन वी राइट सॉरी ओवर हेयर, वी हैव टू राइट सॉरी हेयर ऑल्सो. नो प्रॉब्लम, हम अभी लिख देंगे SORRY, सॉरी. नाउ आई थिंक आपको समझ में आ गया ना व्हाट इज़ मीन बाय गोल्डन वर्ड्स. Golden words are the word that we are supposed to use in our general routine, in our daily routine life. If someone hurt us or if we hurt someone, so what we have to say? We have to say sorry. If we, for example, if we interrupt someone, so what we have to say? We have to say excuse me. If we want something to someone, we should say please. If someone gives us something, then we should say thank you, right? Or if someone say thank you to us, so what we have to say in return? We have to say welcome. Now come to the gentle advice. It is impolite to interrupt. It is impolite. ये क्या है? impolite है, अच्छा नहीं है. to interrupt, किसी को बीच में टोकना. when two people are talking to each other, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो बीच में interrupt हमें नहीं करना चाहिए. if you really हैव टू गेट समबडीज़ अटेंशन, और आपको बहुत ज़रूरी कुछ बात करनी है, आपको उसकी अटेंशन चाहिए, तो व्हाट यू हैव टू से? यू हैव टू से एक्सक्यूज़ मी इन अ वेरी पोलाइट मैनर. इन अ वेरी पोलाइट मैनर मीन्स इन अ लो वॉइस, इन अ पोलाइट मैनर. धीरे से, बहुत जेंटली, आराम से हमें क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज़ मी. राइट. आई थिंक दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू ऑल. Yes, good morning my lovely kids. Today we will do Unit 6 Historical Monuments. Historical Monuments यानी जो हमारी हिस्टोरिकल्स यानी हमारी पुरानी इमारतें होती हैं. मॉन्यूमेंट्स यानी बिल्डिंग्स होती हैं, पुरानी बिल्डिंग्स जो होती हैं जो हमारी इतिहास से चलती आ रही हैं, बहुत पुरानी. आज हम उनके बारे में जानेंगे. मॉन्यूमेंट्स आर सिंबल ऑफ अ कंट्री हिस्ट्रीज. मॉन्यूमेंट्स आर सिम्बल्स ऑफ अ कंट्री हिस्ट्री. मॉन्यूमेंट्स जो होती हैं, जो पुरानी इमारतें होती हैं, वो हमारी हिस्ट्री यानी हमारी जो हमारा जो कंट्री है यानी जो हमारा देश है उसकी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं. इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री एंड कल्चर. इंडिया यानी भारत के पास बहुत ही रिच, बहुत सारी इतिहास है, बहुत सारा कल्चर है, हमारी बहुत सारी सभ्यता है. वी हैव मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. हमारी बहुत सारी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं अक्रॉस द कंट्रीज़, पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में. आइडेंटिफाई द मॉन्यूमेंट्स. अब हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है विद द हेल्प ऑफ हिंट्स गिवन बिलो.